قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا لا الہ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي
صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جسے چاہا دل پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا جی جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بھلا غلولا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ما شاء الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه وعلى آلك وصحبك وسلم عليك يا رحمة للعالمين. احباب ذی وقار، اللہ کے فضل اور کرم سے آج ہم مرزا محمد اقبال صاحب مرحوم مغفور ان کے جنازہ میں شریک ہیں. خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ رب تعالی ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس موقع پر آپ احباب کے سامنے ایک مختصر سا موضوع تقریباً 10 منٹ باقی ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. الحمدللہ ہم بے شمار جنازوں میں شرکت کرتے ہیں اور یہ جو لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ چند دن پہلے ایک جنازہ ہوا. اسی طرح اس وادی کی بھی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں باہر سے آنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جنازوں میں احباب کی شرکت زیادہ ہوتی ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے اور یقیناً رب کے فضل اور کرم کے بغیر کوئی بھی نیکی نہیں کی جا سکتی. رب تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے. اب احباب کے سامنے سورہ ہجر کی آیت نمبر 2 پارہ نمبر 14 سے تلاوت کی. اسی حوالہ سے اسی آیت کے پیرائے میں جو کچھ بھی کلمات ہوں گے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. اس سورہ کی ابتدا پارہ نمبر 13 کی آخری آیت سے ہوتی ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا یعلمون. احباب ذی وقار، ہم سب یہاں پہ موجود اس نیت، اس ارادے اور اس امید سے ہیں کہ خالق کائنات ہم سب کو انشاءاللہ العزیز بخش دے گا اور ہمارے ایمان کو قبول فرمائے گا اور اس ایمان کے بدلے ہمیں آخرت میں اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا. اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں. لیکن یہاں یہ بات آپ کے سامنے یہ آیت مقدسہ اور اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
रुबामा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू, कुछ कुफ़ार जो हैं वो ये कहेंगे, ये उम्मीद और काश इस तरह के अल्फाज से कहेंगे, लौ कानू मुस्लिमीन, कि हम क्या होते, हम मुसलमान होते। कि कुफ़ार कब कहेंगे कि हम मुसलमान होते। और इस आयत के अंदर हम कौन से कन्फ्यूजन में मुब्तला हैं, किस वजह से। एक कन्फ्यूजन है बहुत बड़ी, और वो ये है कि हर शख्स ये समझे कि चलो जिसने नेक अमाल किए वो भी जन्नत में जाएगा और हम भी जन्नत में जाएंगे। और ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, तो इसी निज़ाम के तहत हम चूँकि मरना है और फिर हम जन्नत में चले जाएंगे। और ये पिछली दहाइयों में हमने बहुत सारे खिताबात और बहुत सारी बातों में हमें इस बात में उलझे हैं। और ये किसी वहमी और किसी वैसे नफ्सियाती बात नहीं है, ये हकीकतन बात है। और ज़ाती तौर पर जब मुकालमा मुख्तलिफ बुज़ुर्गों से, मुख्तलिफ लोगों से होता है, तो फिर वो इस बात पर मुसिर होते हैं, वो इसरार करते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। और इस आयत में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि कुफ़ार क्या कहेंगे कि हम मुसलमान होते। और ये कब कहेंगे, जब बहुत सारे लोग जब मरेंगे और उनके गुनाहों की वजह से मुसलमानों को, अहले ईमान को उनके गुनाहों की वजह से जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। और ये तफसीर मजमाउल ज़वाइद अल मुस्तदरिक और तफसीर इब्ने कसीर के हवाला से इसी आयत की तफसीर में है कि वो बहुत सारे लोग जो अहले ईमान अपने गुनाहों की वजह से जहन्नुम में चले जाएंगे। और फिर वहाँ जहन्नुम में कुफ़ार और मुस्लिमीन का आपस में मुकालमा होगा कि आप क्यों जहन्नुम में आ गए। आप तो दुनिया में कहते थे कि कलमा पढ़ो और अल्लाह पर ईमान ले आओ, रसूलुल्लाह पर ईमान ले आओ, तो फिर जन्नत मिलेगी। आप किस वजह से जहन्नुम में आ गए। और फिर उसके ऊपर वो उनके ऊपर वो तंज करेंगे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त शफाअत फरमाएंगे उन जहन्नुमियों की। और अल्लाह पाक अपनी गैरत के साथ और अपनी रहमत के साथ अल्लाह पाक उन जहन्नुमियों को, जो मुसलमान होंगे, उनको कुछ अरसा जहन्नुम में रहने के बाद और जितने उनके गुनाह होंगे उनकी जो मुतबादिल, जो पक्की सज़ा बनती है उसके बाद, क्योंकि रब्बे ताला इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, अपने वादा के खिलाफ नहीं करता है। तो फिर उनको जब जन्नत में भेजा जाएगा तो फिर उस वक़्त कुफ़ार ये कहेंगे काश हम भी मुसलमान होते। और फिर अगली आयत में ज़रहुम याकुलू व यतमत्ताऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफा यअलमून। ये वो आयत है जो आज हम सब पर सादिक आती है। अहबाब ज़ीवकार, अल्लाह ताला हम सब के नज़रियात को खालिस्तन बनाए और हम रब और रसूल के उसके जो मकाम और मर्तबा है उनके मुताबिक हम उन पर ईमान ले आए। रब की खुदाई के साथ कोई शरीक नहीं है और रसूलुल्लाह की रिसालत में कोई शरीक नहीं है। जहाँ तौहीद के साथ शिरक मना है, वहाँ रिसालत के साथ भी शिरक मना है। अहबाबी ज़ीवकार, अल्लाह ताला आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाते हैं, पारा नंबर 14, ज़रहुम याकुलू व यतमत्ताऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफा यअलमून, कि है हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन लोगों को खाने पीने में और इनके जो मामूलात हैं उनमें मसरूफ़ रहने दें। व युल्हिहिमुल अमलु, और ये उनको उम्मीदें लगाए बैठे हैं बड़ी बड़ी, उनमें रहने दें। फसौफा यअलमून, अनकरीब ये जान जाएंगे। फिर अगली आयत में ये भी फरमाया गया कि हमने बहुत सारी उम्मतों को हलाक कर दिया उनके मामलात की वजह से। बिहम्दिही ताला, दुनिया में जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती किसी पर अजाब नहीं आएगा, ईमान ले आए, अजाब नहीं आएगा। रब ताला ने फरमा दिया कि हबीब पाक जब तक आप इनमें मौजूद हैं हम अजाब नहीं देंगे, दुनिया में अजाब नहीं नाजिल करेंगे। लेकिन ये वहम और गुमान इसमें पड़ जाना कि हम ज़रहुम याकुलू, हम खा रहे हैं, व यतमत्ताऊ, और दुनियावी मामलात में मसरूफ़ हैं, व युल्हिहिमुल अमलु, बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। हम जो खाने पीने वाला है, जिसको अल्लाह ने बड़ा वसी दस्तरखान अता किया, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी अता की, बड़ा कामयाब बंदा कहते हैं। और मोहल्ले वाले ताना देते हैं, देखें कितना अच्छा और कामयाब बंदा है जिसने अपने घर वालों के लिए इतना सारा कुछ जमा किया। ये नहीं कहते क्या हलाल का है या हराम का है, कहाँ से लाया, किस तरीके से लाया, किस जरिए से लाया। व यतमत्ताऊ व युल्हिहिमुल अमलु, और फिर इसमें कोई
गुमान, कोई वहम वाली बात नहीं है कि उम्मीद इंसान के लिए, मुसलमान के लिए बड़ी बात है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, बड़ी उम्मीद दिलाई गई है। लेकिन ऐसी उम्मीदें जिनकी तरफ हम लगे फिरे हैं, और ऐसी उम्मीदें कि जिनके लिए हमें पता है कि ये दुनियावी मामलात हैं, कहते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, समझते भी हैं, फिर सुबह उठ के या कहीं यहाँ जमा है, सुना है बयान, लेकिन कल वही रवश है। ऐसे मामलात में जिनमें हम बैठे दुनियावी मामलात में याकुलू, खाते पीते हैं, वयतमत्ताऊ, और दुनियावी मामलात में मसरूफ हैं, वयुल्हिहिमुल अमल, और ऐसी उम्मीदें लगाए हैं। फसौफ यअलमून, ये यकीनन ये फरमा दिया गया है, जब आदमी तह ज़मीं जाता है तो वो यकीनन जान जाएगा। तो हम यहाँ मौजूद खालिक कायनात के हुजूर दुआ गो हैं कि रब ताला, ये जो हदीस मुबारका कि जिसमें ये फरमाया गया कि कुफार और बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे, ये सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनसे रवायत है, और सैयदना अब्दुल्ला बिन जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनसे रवायत है। और इसके अलावा बेशुमार इस मौजू से मुतल्लिक़ अहादीस मुबारका मौजूद हैं। क्योंकि जब भी यहाँ कहीं भी इस्लामी बयान होता है, हमारे जहनों की खिड़की बड़ी तेज़ हो जाती है। हम समझते हैं क्या हमारा जो अकीदा और नज़रिया है, क्या जो हमारी सोच और इल्म है, ये बातें उसके साथ मैच कर रही हैं कि नहीं। जब मिल रही हूँ मान जाते हैं अच्छा बंदा बोल रहा है, बड़ी खूबसूरत बात कर रहा है। जब हमारे नज़रियात के साथ टकराव हो जाए तो देखो खुदा के बंदो, देखो अजीज़ व अकारिब, यहाँ पे रब ताला का फरमान, आयत और अहादीस मुबारका क्या कह रही हैं। यही बात है कि रब के यहाँ जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, सारे लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह को हो फलाह पा जाओगे। जब ये फरमान हुआ तो किसी की जाती बात कोई नहीं की कि मेरा फलां से कोई मामला है तो फलां का फलां से हो गया। लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम हस्ती, जिसकी 40 साल के बारे में कस्में दे दे कर कहते थे सादिक और आमीन है, जब ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद की तो सारे दुश्मन हो गए, सारे टकराने वाले हो गए। क्या वजह थी? जब नजरिया टकरा रहा हो, जब सोच में तब्दीली का वक्त हो, तो हमने अपनी मुलाजमत बचानी है, हमने अपना नजरिया बचाना है, हमने अपनी सोच बचानी है, हमने अपनी इज्जत और तकरीम बचानी है। लेकिन अल्लाह और रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत और वफा का ऐलान नहीं करना है। यहाँ आज़ादी के साथ ये खूबसूरत माहौल में अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत हमें मुल्क अता किया, आज़ादियाँ अता की। यहाँ किसी के लिए कोई प्रॉब्लम, टेंशन नहीं है। अब हमारे लिए मसला ये है कि हम अपने वहम से, अपने जहनों से, अपने ख्यालात के कैद होने से, जिन ख्यालात में हम कैद हैं, वहाँ से निकल जाएं और ये सोचें कि जो बोल रहा है वो कहाँ से बोल रहा है, क्या तोल के बोल रहा है या कहीं से बोल रहा है, क्या उसने कुछ मेहनत की, क्या कहीं से कुछ हदीस और कुरान की आयत के दलाइल मौजूद हैं, या सिर्फ हमें उलझाया हुआ है, तर्ज व तरान्नुम में उलझाया हुआ है, या किसी और मसले से उलझाया हुआ है। रब ताला के हुजूर दुआ है कि खालिक कायनात हमें हकीकी दीन अता फरमाए और हमारे अंदर हकीकी समझ अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम ज़रा सोच में, समझ में, दीन के मामलात में, अल्लाह और उसके रसूल के मामलात में ज़रा संजीदा हो जाएं। अहबाब इज़ी वकार, यहाँ एक बड़ी गाड़ी से उतरने वाला आलिम दीन जब बात करता है, जब कलाम करता है, झुक जाते हैं, बिछ जाते हैं। लेकिन जब कोई और बंदा बात करता है तो उसके बैकग्राउंड को देखा जाता है। अहबाब इज़ी वकार, ये सारी बातें सुनने को मिलती हैं। खुदारा इस्तिग़फ़ार कीजिए। रब ताला ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे गुनाह, ये जो ज़मीन सारी है, ज़मीन और आसमान के दरमियान, ये सारी जगह में समा जाएं, ये जो रेत के ज़र्रे हैं सारी ज़मीन के, इस बराबर भी हो जाएं, समंदर के ऊपर जितनी जाग है उसके बराबर भी हो जाएं, अगर कोई शख्स सिद्क़ के दिल से अल्लाह के यहाँ नादिम होकर कहे, अस्तग़फिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, रब ताला माफ़ फरमा देते हैं। अगर किसी शख्स ने कहा, मेरे साथ मिलकर कह दीजिए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, अल्लाह पाक सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है क्योंकि वो पाक है और उसकी हम्द है। खालिक कायनात के हुजूर दुआ है कि रब ताला इन साहिब की बरकत से और हाज़रीन मजलिस, ये जहाँ पे जनाजा शुरकाए जनाजा है, इनकी बरकत से हमारे गुनाह माफ़ फरमाए और
भाई जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद इकबाल साहब मरहूम व मगफूर, और आप अहबाब इतनी खूबसूरत नूरानी शख्सियात और अहबाब जो मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनकी वजह से इनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए रब ताला। और आप अहबाब के सामने एक ऐलान है भाई मोहम्मद मिर्ज़ा मोहम्मद जुल्फ़कार साहिब की तरफ से कि इन साहिब के साथ किसी बंदे का भी कोई लेन देन है तो वो उनसे भी रब्ता कर सकता है। इनकी औलाद भी मौजूद है, इनके बेटे भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर किसी के साथ कोई लेन देन का मामला है तो वो उनके साथ कर सकता है। खालिक कायनात अमल की तौफीक अता फरमाए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह पाक हमारी इस नमाज़ी जनाज़ा को अपनी बारगाह समदियत में शर्फ़ मक़बूलियत अता फरमाए। या अल्लाह पाक शुरकाए जनाज़ा का या अल्लाह पाक यहाँ हाजिर होना, ये जनाज़ा पढ़ना इनके लिए बाइस मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पाक हमारे साबका गुनाहों को मुआफ़ फरमा, आइंदा आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह पाक बिलख़ुसूस मिर्ज़ा मोहम्मद इकबाल साहिब मरहूम व मग़फ़ूर, या अल्लाह पाक इनके सगायर कबायर गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह पाक इनके सगायर कबायर गुनाहों को माफ़ फरमा, जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। इनके हक़ में हमारी आजिज़ाना दुआए मग़फ़िरत अपनी बारगाह समदियत में मकबूल हो फरमा। या अल्लाह पाक इनके दराजात को बुलंद फरमा, इनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा से बहराम फरमा। क़यामत के रोज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से हौज़े कौसर से जामे कौसर नसीब फरमा। अल्लाह पाक इल्लियीन में आला वरफ़ा मुक़ाम अता फरमा। या अल्लाह पाक इल्लियीन में आला वरफ़ा मुक़ाम अता फरमा। हाज़रीन मजलिस के साथ ताल्लुक़दार रिश्तेदार आइज़ा व अक़रबा और ये जो करीब कब्रिस्तान है इसमें जो मदफून है सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पाक सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह पाक भाई मोहम्मद इकबाल साहिब के लवाहिकीन को आइज़ा व अक़रबा को इनकी औलाद को सब्र जमील अता फरमा, सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सब को कब्र की आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागुज़ी फरमा, इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह पाक हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा, हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा। मरते दम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अल-अख़यार व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन बिरहमतिही या अरहमर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। विच कब्र दे दिल घबरावे ओथे कोई ना आन बचावेगा, ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा। ओथे कोई ना आन बचावेगा, ओथे कमले वाला आवेगा। ला इलाहा
الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا لا الہ